Hi, this is Maulik, मैं Maulik. Today we'll talk about yogic wisdom and diurnal power for living long healthy life. मैं मौलिक आज हम बात करेंगे योगिक विजडम की और डायurnal पावर की एक स्वस्थ लंबा जीवन जीने के लिए. According to yogic philosophy, person who eats one meal a day is yogi. That is someone who is living in accordance with principles of yoga. योगा फिलोसॉफी के अनुसार वो व्यक्ति जो दिन में एक बार खाना खाता है वो योगी है, जो योगा के सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है. According to yogic philosophy, person who eats 2 meals a day is bhogi. That is someone who enjoys food. योगा फिलोसॉफी के अनुसार वो व्यक्ति जो दिन में 2 बार खाना खाता है वो भोगी है, यानी कि जो खाद्य पदार्थों का आनंद उठाता है. According to yogic philosophy, person who eats 3 meals a day is rogi. That is someone who is suffering from some kind of disease or illness. According to yogic philosophy, योगा फिलोसॉफी के अनुसार वो व्यक्ति जो दिन में 3 बार खाना खाता है वो रोगी है, यानी कि उसे कोई ना कोई बीमारी या डिजीज है. Now we'll talk about Dr. David Sinclair, who is a longevity researcher who has PhD, who eats only 1 meal a day. अब हम longevity researcher डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर की बात करेंगे जिनके पास PhD है, वो दिन में केवल एक बार खाना खाते हैं. वो डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर ऑल्सो रेकमेंड्स ईटिंग लेस ऑफन ड्यूरिंग डे. डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर ये भी सुझाव देते हैं कि दिन में कम बार खाना खाइए. He has PhD and several decades of longevity research experience. उनके पास PhD है longevity research में और अनेक शतकों का longevity research का experience है. Now we'll talk about diurnal power. अब हम diurnal power की बात करेंगे. From millions of years, every living organism on planet Earth has evolved to be diurnally active. Diurnal means chiefly active during sunlight or daylight. करोड़ों वर्षों से हर एक जीव जो पृथ्वी पर है वो डायurnally एक्टिव रहने के लिए, यानी कि कुदरती प्रकाश या सूर्य प्रकाश के दरमियान प्रमुखतः कार्यरत रहने के लिए इवॉल्व हुआ है. I know a family where most of the family members are sick or suffering from some disease. मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ जहाँ पर बहुत सारे लोग, सभी सदस्य जो हैं कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित हैं. One of the elder passed away because of heart attack a year ago. एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई इस परिवार के 1 साल पहले हृदय की अटैक की वजह से. Another elder suffering from autoimmune disorder. दूसरे बुजुर्ग जो है उनको autoimmune disorder है. Both husband and wife of this family are suffering from type 2 diabetes. दोनों पति पत्नी जो है इस परिवार के उनको type 2 diabetes है. Why? क्यों? Because they sleep very late in the night. क्योंकि वो रात को बहुत देर से सोते हैं. They eat late night dinner. वो बहुत देर से खाना खाते हैं. And they are hardly physically active. और वो बहुत कम शारीरिक प्रवृत्ति करते हैं. According to research published by American Medical Associations in JAMA, Journal of American Medical Association, walking 10,000 steps a day is an absolute must in order to live long healthy life. एक रिसर्च जो पब्लिश की थी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने जामा में, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में, रोज़ के 10,000 कदम चलना एक स्वस्थ लंबा जीवन जीने के लिए आधारभूत है. It is fundamental to walk 10,000 steps every day in order to live long healthy life. एक आधार है स्वस्थ लंबा जीवन जीने का रोज के 10,000 कदम चलना. And second foundation for living long healthy life is being active diurnally, that is chiefly during sunlight or daylight. That is, eat heavy to moderate breakfast, moderate lunch, and I don't take dinner. If you want to take dinner, take it during daylight between 5 to 6 p.m. यानी कि सुबह का नाश्ता ज़्यादा या मध्यम मात्रा में, दोपहर का खाना मध्यम मात्रा में. मैं शाम का खाना नहीं खाता हूँ. अगर आप शाम का खाना खाना चाहते हैं तो सूर्य प्रकाश या कुदरती प्रकाश के दरमियान 5 से 6 बजे के बीच खा लीजिए. Every cell in human body is mostly active during sunlight और daylight. हर एक कोशिका जो मानव शरीर की हो प्रमुखतः सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में एक्टिव रहती है. when light becomes dim and it's dark, our body switches down. जब अंधेरा हो जाता है
सूर्य प्रकाश नहीं रहता है शाम को, हमारा शरीर जो है स्लो डाउन कर देता है. So, being eating mostly during daylight between 6 a.m. to 6 p.m. यानी कि प्रमुखतः सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खाना खाना है. एक्सरसाइजिंग मोस्टली ड्यूरिंग डे टाइम ड्यूरिंग 6 a.m. to 6 p.m. यानी कि कसरत या व्यायाम भी करना है तो आप प्रमुखतः सुबह 6 बजे या से लेकर शाम के 6 बजे तक कीजिए. Every cell in human body has an internal clock, something known as circadian rhythm or diurnal rhythm. हर एक कोशिका जो है मानव शरीर की उसके अपनी खुद की एक घड़ी है अंदर की, जिसको सर्केडियन रिदम बोला जाता है या डायोनल रिदम बोला जाता है. इट इज़ एक्टिव मोस्टली ड्यूरिंग डे लाइट. यह प्रमुखतः कुदरती प्रकाश के दरमियान ही एक्टिव रहती है. लिटल लीड्स लिटल सीड, छोटे छोटे कर्म छोटे छोटे बीजों की तरह होते हैं. दे ग्रो अप एज फ्लावर्स ऑफ वीट. वो या तो फूल बनकर खिलते हैं और या फिर बिन ज़रूरी के पौधे या कांटे बनकर. टू सम अप दिस वीडियो, ईटिंग आई 2 meals a day because I move a lot. I don't take dinner and I move and exercise mostly during daylight before 6 p.m. between 6 a.m. and 6 p.m. That is, to sum up this video in one line, be eating and being physically active mostly between 6 a.m. and 6 p.m. is foundation for living long healthy life. यानी कि प्रमुखतः सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक प्रवृत्ति करना, खाना खाना और शारीरिक प्रवृत्ति, कसरत, व्यायाम करना एक आधार स्तंभ है स्वस्थ लंबा जीवन जीने के. लिटल डीड्स और लिटल सीड्स, छोटे छोटे कर्म छोटे छोटे बीजों की तरह होते हैं. दे ग्रो अप एज फ्लावर्स ऑफ वीट. वो या तो फूल बनकर खिलते हैं या बिन ज़रूरी के पौधे और कांटे बनकर. माई पीपल वर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, एज बाइबल सेज. मेरे लोगों का नाश हो गया क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था, जैसा बाइबल में कहा गया है. इंडियन scriptures talk about nasti vidyasam chakshu. There are no eyes equal to or greater than eyes of knowledge. भारतीय प्राचीन ग्रंथ कहते हैं नास्ति विद्यासम चक्षु, यानी कि ज्ञान के समान, ज्ञान से बड़ी, ज्ञान समान कोई आंखें नहीं है. चॉइस विल एंटायरली बी योर्स. निर्णय हमेशा आप करेगा. दिस इज मौलिक. हैव अ ग्रेट डे.